Good morning, beta. Today we will discuss about respiration in animals. Before we will start respiration in human beings, first we will talk about some other animals. Earthworms. Earthworms respire through their skin. There is not a specific organ present in earthworm for respiration. They intake oxygen through their skin, means concentration of oxygen is higher in atmosphere and less inside the body. So by the process of diffusion means movement of air from higher concentration to lower concentration. So oxygen higher concentration atmosphere में will be diffused inside the body of earthworm through the skin. तो स्किन के थ्रू इनके में रेस्पिरेशन हो जाता है बेटा. रेस्ट ऑफ प्रोसेस होने के बाद फिर क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इनसाइड कंपेयर टू आउटसाइड, देन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इट विल मूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अगेन. So intake of oxygen and give out of carbon dioxide, or you can say that whole respiration process takes place through the skin. Aquatic animals like fish and other animals present in water, they respire or they breathe through the gills. Okay, gills is a specific organ present in aquatic animals which help them to take oxygen from the water, means which is dissolved form in present in water. We cannot intake that oxygen. अगर हम पानी में डूब करके ट्राई करें ब्रीथ करने का, तो it is not possible because lungs can intake atmospheric oxygen and gills helps in intaking or taking oxygen dissolved in water. So gills help करता है बेटा, हेल्प करता है ऑक्सीजन जो डिजॉल्व वाटर में उसको लेने की. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्वेश्चन आता है, एक्वेटिक एनिमल, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर देन द अदर एनिमल्स जो प्रेजेंट है लैंड पे बेटा, मीन्स ह्यूमन बीइंग अदर एनिमल्स जो लैंड पे प्रेजेंट है उनसे इनका ब्रीदिंग फास्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज मोर देन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. सो इनकी रिक्वायरमेंट, जब ऑक्सीजन वहाँ पे कम है, सो कंप्लीटिंग देयर रिक्वायरमेंट दे ब्रीथ फास्टर. सो इसके लिए वो बहुत तेजी से ब्रीथ करते हैं जिससे उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके. एंड इन एटमॉस्फेयर देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, सो नो नीड टू ब्रीथ फास्टर फॉर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग. अंडरस्टूड बेटा? क्यों वो फास्ट करते हैं? बिकॉज लिमिटेड ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर. सो इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए इनको फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है. नाउ इंसेक्ट्स बेटा, insects like grasshoppers, cockroach or housefly, there are tiny pores present on their body. That tiny pores or tiny holes are known as spiracles. Spiracles के through spiracles are the tiny pores present in the body of insects through which they intake oxygen, and the rest process complete through the tube like structure that is trachea. के बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज ट्रैकिया. थ्रू द ट्रैकिया, ट्रैकिया इज a respiratory organ in a insects like human being. lungs is a respiratory organ. aquatic animals में gills respiratory organ है, वैसे trachea इनके अंदर respiratory organ है बेटा. so through the pores present on their body, there are tiny pores present on their body, spiracles through which they intake oxygen, and then tube like structure trachea will help to take that oxygen and transport to whole part of the body. And after completing the respiration, carbon dioxide will be taken by the trachea and then it is released in the atmosphere through the pores present on their body, that is the spiracles. तो इस तरह से इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है बेटा. नाउ व्हाट अबाउट रेस्पिरेशन इन अमीबा? Amoeba is a single cell organism. We have seen in the digestion process as well. Amoeba is a single cell organism.
So amoeba depends on the simple diffusion of gases for breathing. Means diffusion process take place in amoeba. Diffusion is, just clear it beta, diffusion is a process in which gas move from higher concentration to lower concentration. Means ऑक्सीजन इज मोर इन एटमॉस्फेयर कंपेयर टू इनसाइड देयर बॉडी. तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा इनके बॉडी में थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, यू नो दैट अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मींस एक सेल का है, एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. तो उसके थ्रू डिफ्यूज होगा बॉडी में. आफ्टर दैट जो भी फूड उन्होंने डाइजेस्ट किया था बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दैट विल बी ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड अगेन carbon dioxide will be accumulate inside the body which have higher concentration inside the body compared to the outside. तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो इनसाइड से बाहर, इनसाइड से आउटसाइड अगेन डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सिमिलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन पैरामीशियम एज वेल. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन. amoeba is a single cell organism which depends simple diffusion for a respiration of gases. So through the cell membrane they intake oxygen, or we can say that through the cell membrane oxygen gas is diffused inside the body for the respiration, and after completing the respiration process carbon dioxide will be diffused out from the or through the cell membrane to the atmosphere. तो इस तरह से अमीबा में होता है बेटा डिफ्यूजन प्रोसेस, सॉरी रेस्पिरेशन प्रोसेस. नाउ respiration process in human beings, which is very important. Before we'll start that respiratory system कैसे है, जो बेसिक फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में, हम उसकी बात करते हैं बेटा. Two things we have to note it down. First, ribs, and second डायफ्रैगम. डायफ्रैम और रिब्स, ये दोनों का मूवमेंट कैसे होता है बेटा. when we intake oxygen, we know that when we intake oxygen, the chest cavity, that is also known as thoracic cavity, will increase because when we intake oxygen, so volume will be increased of our chest cavity. So at that time rib cage moves outward and upward. Okay beta, so when we intake oxygen, rib cage moves outward and upward because of increase in volume of rib cage. At that time diaphragm move downward. Diaphragm, just see the figure is given in your textbook, so आपको मालूम पड़ेगा there is a muscular seat present in the lower part of rib cage, that is muscular seat which is known as diaphragm. So when we intake oxygen, volume of rib cage will increase. Due to increase in volume, rib cage will move downward direction and chest cavity will move upward and outward direction. इससे क्या होगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एयर ज्यादा स्टोर हो पाएगी इनसाइड. एंड व्हेन वी exhale, means when we will remove carbon dioxide outside, that time muscular seat diaphragm will move upward direction. So इससे क्या होगा, वो पुश करेगा, पुश फोर्स क्रिएट होगा due to the movement of diaphragm in upward direction, then carbon dioxide easily exhale out from the body. हम पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन कैसे होता है वो जानने से पहले हम ये चीजें समझ लेते हैं. रिब केज और डायफ्राम वर्क कैसे करता है बेटा. व्हेन वी इनटेक ऑक्सीजन, दैट टाइम रिब केज, ये एमसीक्यू में आएगा बेटा. व्हेन वी इनहेल, मूवमेंट ऑफ रिब केज पूछेंगे तो उस टाइम याद रखना है आउटवर्ड एंड अपवर्ड.
अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एरिया बढ़ेगा। अगर बलून में आप हवा भर रहे हो तो क्या होता है, वो आउटवर्ड की तरफ ही मूव करेगा उसका, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है एयर का। सो व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन, रिब केज मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन एंड डायफ्रागम विच इज मस्कुलर सीट मूव्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. Okay, and when we'll exhale carbon dioxide during the process of respiration, when we will exhale carbon dioxide, that time rib cage moves downward and inward direction and diaphragm move in upward direction. इससे क्या होगा, फोर्स क्रिएट होगा, मसल्स का प्रेशर लगेगा और एयर इजिली एक्सेल हो जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? नाउ वी विल सी दैट respiratory system in human beings, how respiratory system or respiratory organ works in human being. beta, I'm not going to make figure here, but through the flow chart I will try to explain you. There are different organs used in a respiratory system in human beings. First is nose, or you can say that nostrils. That is holes present in nose. After that क्या क्या पार्ट्स यूज हुआ है पहले लिख रहा हूं बेटा मैं, उसके थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. नेजल कैविटी और नेजल पैसेज भी बोल सकते हैं. आफ्टर दैट विंड पाइप, or you can say that trachea. Okay, then bronchi, please read the textbook. Then bronchioles, after bronchioles alveoli. ओके, इनके यूजेस क्या है? ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के पार्ट्स है दैट विल बी यूज्ड इन respiration process in human. Okay, first step, that is inhalation, means we will intake oxygen inside our body through the nostrils or two holes present in nose, and through which beta, इसके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे एंड देन ऑक्सीजन विल पास. फिगर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, प्लीज ट्राई टू सी फ्रॉम देयर. एंड थ्रू द नोस्ट्रिल्स एयर विल मूव टू द नेजल कैविटी वेयर सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर एज वेल एज म्यूकस इज रिलीज्ड. वहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नेजल कैविटी में बेटा, और वहां पे नेजल कैविटी के ग्लैंड से म्यूकस रिलीज होता है. व्हाट इज द यूज ऑफ हेयर एंड नेजल कैविटी? It prevents the dust particle which enters along with oxygen inside our nostrils. Nostrils में sometime क्या होता है, जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो जो polluted एयर में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं. सो दैट हेयर एंड म्यूकस विल प्रोटेक्ट और प्रिवेंट देयर मूवमेंट इनसाइड आवर लंग्स. सो उनको क्या करते हैं बेटा, वो वहां पे नेजल कैविटी में उनको रोक लेते हैं. ओके, after that one more thing, that is pharynx. लैरिंक्स आपने पढ़ा होगा, जो वॉइस बॉक्स होता है. pharynx is a small tube like structure present through which food move from mouth to food pipe and air move from nasal cavity to wind pipe. ये नेजल कैविटी के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है फेरिंक्स. थ्रू उसके थ्रू बेटा एयर जो हमारा मूव करके विंड पाइप में जाता है और फूड हमारा मूव करके फूड पाइप में जाता है. दैट इज द यूज ऑफ फेरिंक्स. ओके, इट इज also sometimes known as throat. It is a part of throat. Okay, so when we will intake oxygen through the nostrils, it will reach to the nasal cavity. In nasal cavity, hairs and mucus is present. Mucus is released by a gland present in a nasal cavity, and that will help to
protect or prevent, we can say that prevent the movement of dust particle inside our windpipe. Okay, so then clean air will enter to the windpipe. After that, windpipe is also known as trachea. Okay, so trachea, that is the tube like or rod like structure present in our neck, and then after that, that windpipe will divided into two part. Okay, सिंपल एक फ्लो चार्ट के थ्रू बेटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको. फिर क्या होगा यहाँ पे, विंड पाइप आपका, ये आपका विंड पाइप, और यू कैन से दैट या इधर आपका नोज एंड नेजल कैविटी, वो होल रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा. अंडरस्टूड? विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट सी फ्रॉम, जस्ट सी फ्रॉम देयर. So windpipe is divided into two part, that is known as bronchi. Okay, okay beta. So each bronchi will move in a two lungs. There are two lungs present. So दोनों lungs में क्या होगा, एक एक bronchi चला जाएगा बेटा. Then after that what will happen? Bronchi again split. Bronchi is just a tube like structure. Again it will split into a tiny tubes, that is known as bronchioles. Bronchi आगे चल के और छोटे छोटे ट्यूब में ब्रेक हो जाएगा बेटा, that is known as bronchioles. ओके, ब्रोंकियल्स कंटेन, मतलब जो लोअर पार्ट है, एंड पार्ट है ब्रोंकियल्स का, वहां पे छोटे छोटे बेटा मिलियंस ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, दैट इज नोन एज एल्वियोली. एंड एल्वियोली इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. हम जनरली बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होता है, बट लंग्स में जो ब्रोंकाई ब्रेक डाउन होकर के ब्रोंकियोल्स हुआ है बेटा, उसका जो आउटर लास्ट पार्ट है, वहां पे बहुत सारे sac like structure present, that is alveoli. Alveoli is connected to the capillaries or blood vessels through which oxygen will enter in the blood. तो यहाँ से फिर ब्लड में चला जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कंप्लीट चालू हो जाएगा. तो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि जैसे ही एल्वियोल से ब्लड में आ गया, देन ब्लड के बाद वो ईच पार्ट में जाएगा जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड सेल्स में प्रेजेंट है, वहाँ पे ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. वो प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सेल्स में कैसे ब्रेक होता है. यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी इनटेक ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड रिलीज द एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर बेटा. ओके, सिंपल तरह समझो यहाँ पे. ओके, ब्रोंकाई कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट एंड ईच ब्रोंकाई एंटर्स टू द ईच लंग्स. देयर आर टू लंग्स प्रेजेंट इन अ चेस्ट कैविटी. दोनों चेस्ट कैविटी इज आल्सो नोन एज थोरासिक कैविटी, ये भी याद रखना बेटा. Okay, so there are sac-like, that is bronchioles. Bronchioles contain millions of sac-like structure, that is alveoles. Question ये भी आता है बेटा, how setup और arrangement alveoli का कैसे है कि ये maximize करता है ऑक्सीजन को. तो एक चीज ध्यान रखना, ये रीजन में आपको क्या लिखना है, there are millions of sac-like structure alveoles are present. Okay, so due to the millions of alveoli present in lungs, or we can say that in bronchioles, that maximize the exchange of gases or intake of oxygen. अगर बेटा हम सभी एल्वियोल को अनफोल्ड करें एक साथ में, that is the surprise things for us. अगर हम उस एल्वियोल को, इतने मिलियंस ऑफ एल्वियोल प्रेजेंट है, अगर उसको हम एक एक को निकाल के अनफोल्ड करें, तो that will cover 80 स्क्वायर मीटर एरिया. 80 स्क्वायर मीटर. जस्ट सपोज
80 स्क्वायर मीटर इज ए लॉन्ग एरिया, लेंथ और ब्रेथ मिलाकर जो एरिया निकालते हैं आप स्क्वायर की, दैट इज द 80 स्क्वायर मीटर. सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच एरिया मैक्सिमाइज और इंक्रीज द एल्वियोली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो इससे मैक्सिमाइज होता है. ओके, so alveoli is the site where exchange of gases take place. Alveoli is the site where oxygen reach, and alveoli is connected to the capillaries or blood vessels beta, through which oxygen will enter in the blood. And then we know that hemoglobin is a red pigment present in the blood that will take oxygen, that will bind with oxygen. अगर सॉरी हीमोग्लोबिन नहीं होगा बेटा तो ऑक्सीजन पूरे पार्ट्स में कैरी नहीं होगा. हीमोग्लोबिन नॉट ओनली मेक्स द ब्लड रेड एज वेल एज इट बाइंड्स द ऑक्सीजन अलॉन्ग विद एल्वियोली एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दैट्स अ नेक्स्ट प्रोसेस, उस पर हमें बात नहीं करना है. आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है? वी इनटेक ऑक्सीजन थ्रू द नोस्ट्रिल्स, दैट इज द होल्स ऑफ द नोज. देन इट विल मूव टू द फर्दर, आगे जाएगा, दैट इज जहां से सेपरेट हो जाता है हमारा माउथ और ऊपर वाले पार्ट में आपका नेजल कैविटी और नेजल पैसेज. इन नेजल पैसेज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंड म्यूकस इज रिलीज थ्रू द ग्लैंड प्रेजेंट इन नेजल. उसके क्या यूज है? वो क्या करेगा बेटा? दैट विल प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लंग्स. तो वो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं. तो यू हैव सीन दैट कि वहां पे फिर हमें इरिटेशन होने लगता है नेजल कैविटी में, जिसकी वजह से स्नीजिंग होता है. ओके, देन फ्रॉम द नेजल कैविटी इट विल मूव्स टू द विंड पाइप, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया. विंड पाइप रन्स थ्रू द, मतलब मूव करती है नीचे नेक के थ्रू, एंड देन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज ब्रोंकाई. Each bronchi enters in the both lungs present in our chest cavity, and after that bronchi divided into several parts, that is known as bronchioles. And वहाँ पे फिर sac-like structure are attached, millions of sac-like structure attached, that is alveoli. Alveoli is the site where oxygen and carbon dioxide is exchanged. जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ब्लड वापस एल्वियोली में, एल्वियोली ब्लड वेसल से कनेक्टेड है तो ब्लड वहीं पे एल्वियोली तक ब्लड आता है. अब वहीं ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है वहीं पे बेटा. देन आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे कि लंग्स के पास ब्लड आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जिससे प्योरीफाइड ऑक्सीजन फिर से अंदर जाए और आगे का प्रोसेस हो. सो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लेस टेक इन एल्वियोली. एल्वियोलीज आर, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स. presence of millions of alveoli in the lungs provide a very large area. तो इससे क्या होता है? easily exchange of gases takes place, or we can say that availability of large area maximize the exchange of gases. So अगर हम इसको unfold करेंगे तो it will contain 80 square meter of area. It shows that there is a lot of volume or lot of areas present for exchange of gases. Understood beta? So this is the one more thing. Lung is a covered by a membrane, thin membrane. lungs जो होता है मेरा बेटा दो thin membrane से covered होता है, that is known as pleura. ये जनरली पूछते नहीं, अगर आए तो याद रखना. pleura is a thin membrane जिससे हमारी lungs को cover रखते हैं pleura से. ओके, तो ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस. जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक, सी द रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन. इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट कमेंट इन इनबॉक्स में कमेंट करो बेटा, कमेंट बॉक्स में सॉरी. फ्रॉम टुमारो और नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द ट्रांसपोर्टेशन. ओके, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना बेटा. थैंक यू.